तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। The female reproductive system is divided into internal genitalia, external genitalia, and accessory glands. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, इंटरनल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स। इन 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। The internal genitalia includes pair of ovaries. इंटरनल जेनेटिलिया में शामिल होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। देयर इज अ पेयर ऑफ fallopian tubes, also called as oviducts। इनको ओविडक्ट्स भी बोला जाता है, ये भी पेयर में होती है। Then there is an unpaired sac called as the uterus, the sac where the embryo develops, where the growth of the fetus takes place, that is the uterus। And the fourth one, that is the vagina, that is the passage for the menstrual blood flow as well as the passage for the childbirth। वजाइना एक ऐसा रास्ता है जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, जो हर महीने जो माहीवारी आती है फीमेल्स में, वहां पे जो ब्लड फ्लो होता है वो वजाइना से बाहर आता है। और जब चाइल्ड का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो ये वजाइना से ही होता है। सो इट इज अ पैसेज फॉर menstrual blood flow as well as the childbirth। ठीक है। uterus is the site where the embryo, where the fetus grows, that duration called as the pregnancy। and ovaries are the primary sex organs of the female, they are the primary female sex gonad, they produces the female gametes every month during the menstrual cycle। the external genitalia are collectively called as the vulva, also called as the pudendum। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को उल्वा बोला जाता है या फिर इसको पुडेंडम भी बोला जाता है। द उल्वा इट कंसिस्ट ऑफ, तो उल्वा के अंदर कुछ हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिब्यूल, which is a depressed portion, it is seen। then surrounding the vestibule there are minor skin fold called as the labia minora। and surrounding the labia minora there are major skin fold called as the labia majora। there is a erectile tissue called as the clitoris, also called as the pseudopenis, which is seen in the vulva। then the fatty part, that is called as the mons pubis, the fatty fleshy part that is present on the vulva, that is called as the mons pubis। so these are the parts that constitute the vulva।
जो वल्वा होता है वो इन 5 चीजों से बना हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ठीक है। ये इंटरनल जेनेटिलिया दे आर नॉट विजिबल। इंटरनल जेनेटिलिया विजिबल नहीं है क्योंकि अंदर से। एक्सटर्नल जेनेटिलिया विजिबल है क्योंकि वो बाहर से है। और इन सबको हम कहते हैं वुल्वा और पुडेंडम। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इसके लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द वल्वा और पुडेंडम। अब यहाँ पे ग्रंथियां भी है। देर आर 2 ग्लैंड्स। वन इज कॉल्ड एज द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो ये भी जोड़ी में होती है। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज बार्थोलियन ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड एज बार्थोलियन ग्लैंड्स। तो ये ग्रंथियां भी कैसी होती है? पेयर्ड होती है। दे आर 2 in number, therefore paired. Then pair of mammary glands. So these are the accessory glands. So here the classification of female reproductive system. ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि इंक्लूड है इंटरनल जेनेटिलिया में, fallopian tubes, uterus, vagina. They constitute the internal genitalia, whereas the external genitalia called as the vulva or pudendum, that is consist of the vestibule, smaller skin fold called as the labia minora, major skin fold called as the labia majora, then the erectile part small called as the clitoris, and a fatty pad, a fatty cushion that is present above the vulva or pudendum, that is called as the mons pubis. Then the accessory glands, they are of 2 types. First is the vestibular glands, also called as Bartholin's gland. Then the second one called as the mammary glands. Both of these glands are paired. ये दोनों glands कैसे होते हैं? Paired होते हैं, ठीक है। So this is the classification of female reproductive system. ये female reproductive system का classification है। So इसके बाद का हेडिंग है ovaries. So ovaries are the primary sex organ of female, or it is the female gonad, also called as female gonad. इसको female gonad भी बोला जाता है। Then इसकी embryonic origin, it is mesodermal in origin. चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरीज, दोनों मेसोडर्म से ही बनते हैं। What is mesoderm? Mesoderm is one of the layer formed during the embryonic development of the during the pregnancy के वक्त एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये आपको मेसोडर्म में एक लेयर बना हुआ नजर आता है। इस लेयर से ओवरीज बनती है, टेस्टिस भी इसी लेयर से बनते हैं। मेसोडर्म से आपका हार्ट भी बनता है, मेसोडर्म से आपके मसल्स बनते हैं, मेसोडर्म से आपकी हड्डियां बनती है, मेसोडर्म से आपका ब्लड भी बनता है। मतलब कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मेसोडर्म से बनते हैं। सो व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म? मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं आपके टेस्टिस, ओवरीज, विच आर कॉल्ड एज द गोनैड्स। मतलब गोनैड्स जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं। और क्या बनता है आपका? हार्ट, ब्लड, ठीक है, देन बोन्स, मसल्स, ठीक है, दे आर डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म। ये सारी चीजें मेसोडर्म से बनती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओवरीज, their size is 3 into 1.5 into 1 centimeter, length, breadth and the thickness, as compared to testes which are 4 to 5 into 3 into 1.5 सेंटीमीटर, जो अपन ने टेस्टिस का साइज देखा था, है ना, 4 to 5 into 2 to 3 into 3, that is thickness, okay।
Then weight is about 4 to 8 grams. Shape is almond shape. बादाम के आकार जैसी होती है. They are almond shape. It is paired. That is right ovary and left ovary. लोकेशंस कहां पे मौजूद है. अब मैं एक डायग्राम निकालवाता हूं. इस डायग्राम से आप बताओ कि ओवरी की लोकेशन क्या है. ओके, सो हियर is the uterus. And these are the ovaries are here. Here is the ovary. So location क्या है? On either side of the uterus. Uterus के दोनों बाजू में. Ovaries are present on either side of uterus. और कहां पे? In the pelvis. Abdomen के नीचे वाला जो एरिया है, that is called as the pelvis region. So location on either side of uterus. गर्भाशय के दोनों बाजू से. ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस, ये होगी लोकेशन. ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस इन विच रीजन? इन पेल्विक रीजन. ठीक है, पेल्विक एरिया में. पेल्विक एरिया कौन सा होता है? दैट इज एरिया प्रेजेंट बिलो द एब्डोमेन. एब्डोमेन के नीचे वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द पेल्विक रीजन. हमारे बॉडी के कुछ रीजन है, जैसे कि हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस. These are the regions of our body. So pelvic region में है. Then supports. ओवरी को किसने सपोर्ट किया? मतलब आधार देने का काम. ओवरी को आधार देने का काम कौन करता है? देखो, ओवरी 4 से 8 ग्राम की है, तो ये वेट की वजह से नीचे चला आएगा ना. ये वेट की वजह से नीचे झुक जाएगा. तो फिर इस ओवरी को वैसे ही पकड़ के रखने के लिए ऐसे कौन से चीजें हैं जो मदद करती है? सो ओवरी को उसके पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे एक लिगामेंट है जो ओवरी से निकल के यूटेरस तक आता है. ओवरी से निकल के यूटेरस तक एक लिगामेंट है जो रस्सी के जैसा नजर आता है. ठीक है, तो ये लिगामेंट का नाम क्या है? दिस लिगामेंट इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट. So ovarian ligament is the structure that hold the ovaries in its position. ओवरी को उसके पोजीशन में पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है. इस सपोर्ट का नाम है ओवेरियन लिगामेंट. ठीक है, जैसे ब्रिज को पकड़ के रखने के लिए ऐसी रस्सी आपने देखी होगी सी लिंक में, मुंबई में है, गोवा में है. ठीक है, तो ये जो है ये किस लिए है? ओवरीज को पकड़ के रखने के लिए. सो सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट है ओवेरियन लिगामेंट. सो ओवेरियन लिगामेंट किसके बीच में है? यस, आप बता सकते हो. ओवेरियन लिगामेंट इट इज प्रेजेंट बिटवीन ओवरी एंड यूटेराइन वॉल. ओवरी और यूटेराइन वॉल के बीच में है. ठीक है, इट connects ovaries
विथ यूटेराइन वॉल, जो क्या करती है, ओवरी को यूटेराइन वॉल से जोड़ती है और उसको पकड़ के रखती है। दूसरी लिगामेंट, द सेकंड लिगामेंट इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। दूसरी जो लिगामेंट है वो है ब्रॉड लिगामेंट, और ये एक चादर की जैसी है। द ब्रॉड लिगामेंट इज लाइक ए शीट एंड इट इज फॉर्म बाय द पेरिटोनियल लेयर। पेरिटोनियम का जो लेयर है उस चीज से ये बनी हुई है। द ब्रॉड लिगामेंट सो दिस इज ब्रॉड लिगामेंट, एक चादर की जैसी है, ठीक है, जिसने क्या किया, इसको ढक के रखा हुआ है, जिसने इसको ढक के रखा हुआ है। दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट। सो ब्रॉड लिगामेंट क्या करती है, किस किस को ढक के रखती है? ब्रॉड लिगामेंट, पहली बात, ब्रॉड लिगामेंट है क्या? इट इज पेरिटोनियल, इट इज पेरिटोनियल लेयर। ये पेरिटोनियम का ही लेयर है। इट इज पेरिटोनियल लेयर विच विच कवर्स, जो कवर कर लेता है, किसको कवर कर लेता है? ओहरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, विच कवर्स ओहरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। ब्रॉड लिगामेंट कैसा है? चादर के जैसा है, जिसने ओहरी, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस सबको कवर कर लिया ऊपर से, ठीक है। दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट। सो ओहरी को किस चीज ने सपोर्ट किया? ओहरी इज सपोर्टेड बाय ओवेरियन लिगामेंट एंड अनदर इज ब्रॉड लिगामेंट। सो ब्रॉड लिगामेंट, इट इज अ पेरिटोनियल लेयर। पेरिटोनियम पता है आपको? पेरिटोनियम इज द कॉमन कवरिंग ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन। इन सबका कॉमन कवरिंग क्या होता है? पेरिटोनियम। जैसे अपन ने देखा था कि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द पेरिटोनियम ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, तो वैसे ही यहाँ पे पेरिटोनियम फीमेल्स में क्या करता है, स्त्रियों में, महिलाओं में पेरिटोनियम ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस इसको ऊपर से कवर कर लेता है, और उसकी क्या बनती है? लिगामेंट कॉल्ड एज द ब्रॉड लिगामेंट। So here the points, these points we can call as the morphology of the ovary. This is the morphology of ovary. ओवरी की मॉर्फोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मतलब बाह्य स्वरूप की पढ़ाई की अपन ने ओवरी की। We have completed the morphology of the ovary here. So इसके आगे हमें लिखना है फैलोपियन ट्यूब। Fallopian tubes, also called as the oviducts, इसको हम ओविडक्ट्स कहते हैं।
ठीक है, ये डायग्राम अभी यहाँ पे आ गई, यही डायग्राम, ठीक है। द फैलोपियन ट्यूब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओविडक्ट. It is horizontal muscular tube present in between. किसके बीच में देखो बार, fallopian tube is present in between ovary and uterus. So it is a horizontal muscular tube present between or which connects uterus with ovary. So it is present between the uterus and the ovary. मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई है, ठीक है। लेंथ होगी करीब 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसके अंदर से सिलिएटेड इपिथेलियम आपको नजर आएगा. इट इज इंटरनली लाइन बाय, इसके अंदर से सिलिएटेड इपिथेलियम है, इंटरनली लाइन बाय सिलिएटेड इपिथेलियम. सिलिएटेड इपिथेलियम मींस यहां के जो सेल्स है इसके अंदर के, ये सेल्स कुछ इस प्रकार के हैं और इन सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. These hair-like structures are called as the cilia. So this is the ciliated epithelium which is present inside the fallopian tube. इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं. These hair like structures are called as cilia. और ये किसमें मदद करते हैं, जो ओहम रिलीज होता है उस ओहम को ये सिलिया क्या करते हैं, आगे भेजते हैं. मतलब देखें, ये मेरे हाथ की जो उंगलियां है ये है सिलिया, ठीक है. अब ये ओहम यहाँ पे रिलीज हो गया, तो इस ओहम को ये सिलिया क्या करेगी, ये सिलिया इस ओहम को आगे भेजेगी ऐसे, ठीक है. सिलिया की जब मूवमेंट होगी तब ये ओहम क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है. जैसे आपने वो गाना देखा होगा, विजय थालापति विजय जो एक्टर है साउथ का, ठीक है, उसका एक मूवी है मास्टर, है ना. तो उसका एक गाना है मास्टर कमिंग. तो जब आता है तब उसको वो स्टूडेंट लोग उठा के ऐसे आगे की तरफ भेजते हैं ऐसे हाथों से, है ना. तो लाइक दिस सिलिया, वैसे ही ये जो सिलिया है ये ओहम को क्या करते हैं, आगे भेजती है, ठीक है. मूवी के एग्जाम्पल दिए तो आपको अच्छे से याद रहता है कि नहीं, इसलिए मूवी का एग्जाम्पल दिया. So ciliated epithelium helps in, किसमें मदद करते हैं, helps in moving the ovum or egg. किसके तरफ, मूविंग द एग और ओहम टुवर्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की तरफ. तो यूटेरस के पहले एक पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द एम्प्यूला, ठीक है. सो मूविंग द एग और ओहम टुवर्ड्स द एम्प्यूला. एम्प्यूला इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एम्प्यूला, ठीक है. अब फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है. There are 3 parts of fallopian tube. First is isthmus. Second one called as the ampulla, and the third one called as the infundibulum. So these are the 3 parts of the fallopian tube. In the given diagram,
Here, this narrow portion of the fallopian tube is called as isthmus. Okay, the narrow portion just in front of the ampulla, that is called as the isthmus, by which the uterus is attached. The part of fallopian tube which is attached to the uterus is called isthmus, which is a narrow part. Ampulla is a swollen part, bulging part, थोड़ा सा फूला हुआ part आपको नजर आता है, that is ampulla. और ampulla के पीछे वाला part towards the ovary, that part is called infundibulum. और जो इन्फंडिबुलम होता है उसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसने ओवरी को पकड़ के रखा, दे आर कॉल्ड एज फिम्ब्री. इन्फंडिबुलम को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम कहते हैं फिम्ब्री. ओके, और इस इन्फंडिबुलम के अंदर एक छेद होता है, उस छेद को हम कहते हैं ऑस्टियम. देखिए, ऐसा समझ लो कि these are the fimbri, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ये फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है फिम्ब्री. दिस वन इज द इन्फंडिबुलम. ये जो पार्ट है ये है इन्फंडिबुलम. ओके, अब इसके अंदर से अगर देखा जाए तो यहां पे एक ओपनिंग होती है. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्टियम. और जैसे ही ओवरी, जैसी जो ओवरी है यहां पे, ये ओवरी ने जैसे ही एग रिलीज किया, ये एग ऑस्टियम से अंदर लिया जाता है. यहां पे जो छेद है दैट इज ऑस्टियम. उस छेद से इस ओवरी का जो एग है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर का जो एग है ये इस ऑस्टियम से अंदर आता है. ठीक है, अब ये ऑस्टियम से इसके अंदर की ये लाइनिंग, दिस इज सिलिएटेड इपिथेलियम. इसके अंदर क्या है, ये सिलिएटेड इपिथेलियम है जो इस ओहम को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा. So this part is ampulla and this part is isthmus. Okay, so what is isthmus? It is narrow part connected with, किसके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड विथ यूटेरस, जो गर्भाशय के साथ जुड़ा हुआ है. isthmus इज द नैरो पार्ट विच इज कनेक्टेड विथ द यूटेरस, जो यूटेरस के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, व्हाट इज एम्पुला? इट इज ब्रॉडर सोलन, खुला हुआ पार्ट है, ब्रॉडर सोलन बल्जिंग पार्ट, ब्रॉडर सोलन बल्जिंग पार्ट, एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन की जगह है. मतलब क्या कि यहां पे ओहम यानी कि एग और स्पर्म जो है ये दोनों एक दूसरे से आके मिलते हैं. मतलब एग और स्पर्म का यहां पे मिलन होता है. सो इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, व्हाट इज एम्पुला? इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. बहुत बार पूछा गया एमसीक्यू सीईटी में. व्हाट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज द साइट फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट? व्हाट इज द साइट फॉर द फ्यूजन ऑफ एग एंड द ओहम, सॉरी, एग एंड द स्पर्म? दैट इज द एम्पुला which is the part of fallopian tube. यही वो जगह है जहां पे जाइगोट बनता है सबसे पहली बार, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. मतलब आपके जीवन की सबसे पहली सेल जाइगोट ये एम्पुला के अंदर बनती. ठीक है, इन्फंडिबुलम. तो इन्फंडिबुलम थोड़ा सा लंबा सा पार्ट है. इन्फंडिबुलम इज द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट. इन्फंडिबुलम
It is long tubular part. It has finger-like. It has finger-like fimbriae, which holds the ovary. ये जो finger-like fimbriae है, वो क्या करते हैं? ओवरी को पकड़ के रखते हैं. It has finger-like fimbriae, which holds the ovaries. जो ओवरी को पकड़ के रखता है. इन्फस्टिबुलम के अंदर एक छेद नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियम. इट हैज ओपनिंग. It has opening called as, that opening is called as ostium. इन्फेंटिबुलम के अंदर जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं ऑस्टियम. और ऑस्टियम से ही एग अंदर आता है. जब एग अंदर आएगा तो उसको ये सिलेटेड इपिथेलियम क्या करेगा? एम्पुला तक पहुंचाएगा. एग को एम्पुला तक ये सिलेटेड इपिथेलियम आगे आगे भेजता है. ठीक है. सो हियर वी कंप्लीटेड द फैलोपियन ट्यूब. यहाँ पे अपनी फैलोपियन ट्यूब जो है वो कंप्लीट हो गई. ठीक है.